ویلکم بیک. آپ کو بتائیں انتخابات کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد. وزیر اعظم اور کابینہ اراکین 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں. قومی اسمبلی نے قرارداد منظور کر لی. پی ٹی آئی نے قرارداد کی مخالفت کی. آن شیرازی کی رپورٹ. قومی اسمبلی کا اہم اجلاس. انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرنے کی قرارداد پاس. اسمبلی اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہوا. بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما خالد مکسی نے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ مسترد کرنے کی قرارداد ایوان میں پیش کی. قرارداد میں 3 رکنی بینچ کے بجائے فل کورٹ میں کیس کی سماعت کا مطالبہ کیا گیا، جسے ایوان نے منظور کر لیا. پی ٹی آئی کے 2 اراکین محسن لغاری اور محمود مولوی نے قرارداد کی مخالفت کی. قرارداد کے مطابق ایوان سیاسی معاملات میں بے چاو عدالتی مداخلت پر اظہار تشویش کرتا ہے. حالیہ اقلیتی فیصلہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہا ہے. ایوان ایک ہی وقت پر عام انتخابات کو مسائل کا حل سمجھتا ہے. یہ ایوان 3 رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتا ہے اور وزیر اعظم سمیت کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس خلاف آئین و قانون فیصلے پر عمل نہ کیا جائے. قرارداد میں کہا گیا کہ عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ 63A کی تشریح سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کرے. ایوان مقدمات کو فل کورٹ میٹنگ کے فیصلوں تک سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی تائید کرتا ہے اور ایک ایگزیکٹو سرکولر کے ذریعے اس پر عمل درآمد روکنے کے اقدام کو گہری تشویش کی نظر سے دیکھتا ہے. وفاقی کابینہ بھی سپریم کورٹ کے الیکشن سے متعلق فیصلے کو پارلیمنٹ کی قرارداد سے متصادم قرار دیتے ہوئے مسترد کر چکی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے انتخابات سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا. وکلا کمپلیکس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں بولے، بڑا آدمی وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے. ہمیں پاکستان کا مستقبل بچانا ہے. آج بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. میں یا میری حکومت ان چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکتی. اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بڑا آدمی وہی ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے. میں ہوں یا کوئی اور ہو، ہمیں پاکستان کا مستقبل بچانا ہے. آج بڑے بڑے چیلنجز کا ہمیں سامنا، اور ان چیلنج کا سامنا اکیلا میں یا میری حکومت نہیں کر سکتی. ان سب سٹیک ہولڈرز ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا ہوگا اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم نے ان کا مستقبل ہم نے محفوظ کرنا ہے. کوئی سیاسی پارٹی الیکشن سے بھاگ نہیں سکتی. وہ اسی دن اس کی سیاست دفن ہو جائے گی جو الیکشن سے بھاگے. خواہش پر انتخابات نہیں کروائے جا سکتے. ملک کو تباہی کی طرف نہیں دھکیل سکتے. وزیر داخلہ نے مخالفین کو واضح پیغام دے دیا. کہتے ہیں ماضی کے متنازع الیکشن کے باعث ہم آج تک ملک کو نہیں سنبھال سکے ہیں. پنجاب میں الیکشن عام انتخابات پر اثر انداز ہوگا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ فل کورٹ نہ بنایا گیا تو ملک میں سیاسی و آئینی بحران پیدا ہوگا. وہ الیکشن سے اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. یہ ملک 2 لخت ہوا، دوبارہ متحد نہیں ہو سکا. یہ ملک دہشت گردی کا اور جو ہے وہ انارکی کا شکار ہوا. آج تک جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ سنبھل نہیں سکا. آپ یہ ایک فرد واحد کی انا کی تسکین کے لیے ملک کو ایسی طرف نہ دھکیلیں. آج بھی ابھی حالات اتنے خراب نہیں ہوئے. ان سارے معاملات کو آپ ایک لارجر بینچ میں لے کے جائیں. وہ لارجر بینچ جس میں تمام جج صاحبان ماسوائے، وہ جنہوں نے رضاکارانہ طور پہ ریکیوز کیا ہے، وہ بیٹھیں اور وہ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرے. نہ کہ یہ ملک اور اس کے ایوانوں میں 4-3 اور 5-2 کی بحثیں ہیں وہ جاری رہیں. قراردادوں سے عدالتی فیصلے ختم نہیں ہوتے. فواد چودھری کا رد عمل. کہا مریم نواز چاہتی ہیں چچا شہباز نااہل ہو جائیں. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ حکومت آئین پر عمل نہیں کر رہی، عوام کا حق بھی چھینا جا رہا ہے. اگر عدالتی حکم نہ مانا گیا تو بڑی تحریک چلانے کو تیار ہیں. پنجاب میں نگراں حکومت کی میعاد 22 اپریل تک ہے. اس کے بعد کسی کاغذ پر دستخط کرے گی تو سیدھا آرٹیکل 6 لگے گا. آج مریم نواز زرداری کی ایک بہت اچھے شاگرد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے چچا کو ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے جال بچھا رہی ہیں، اور ان کا خیال صرف یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ توہین عدالت میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، 5 سال کے لیے نااہل بھی ہو جائیں گے، پارٹی بھی واپس مریم کو مل جائے گی اور چیزیں بھی ان کی ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو اگر سمجھ عقل ہے تو وہ سمجھ جائیں گے. پاکستان کی سپریم کورٹ انڈر آرٹیکل 175 آنورڈ پاکستان کے آئین کی محافظ ہے.
اور اگر آپ کو فیصلے سے اختلاف ہے تو اس کا ایک قانونی طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کے نظر ثانی فائل کر دیں گے، ریویو فائل کر دیں گے. یہ کہنا کہ بینچ 2 کا ہو یا 6 کا ہو یا 8 کا ہو یا 10 کا ہو، فورم شاپنگ میں نہیں کر سکتا. تحریک انصاف نے وزیر اعظم سمیت وفاقی کابینہ کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے وفاقی سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو خصوصی خط لکھ دیا. خط میں وفاقی کابینہ کے 4 اپریل کے اجلاس کے شرکاء، ایجنڈے، کارروائی اور فیصلوں کی تفصیلات مانگی گئی ہیں. تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ قومی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ کابینہ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے 4 اپریل کو آئینی درخواست پر اپنا فیصلہ سنایا ہے. دستور کا آرٹیکل 19A شہریوں کو مصدقہ معلومات تک رسائی کا بنیادی حق فراہم کرتا ہے. سیکرٹری کابینہ دستور پاکستان اور اطلاعات تک رسائی کے قانون کے تحت معلومات فراہم کریں. وفاقی کابینہ کے 4 اپریل کے اجلاس کے شرکاء، ایجنڈے، کارروائی اور فیصلوں کی مصدقہ تفصیلات بلا تاخیر مہیا کی جائیں. تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست میں الیکشن کمیشن گورنر کے پی کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا 1 مارچ کے عدالتی حکم پر عمل نہیں کر رہے. گورنر نے میڈیا پر 28 مئی کی تاریخ کا اعلان کیا، بعد میں مکر گئے. آئین کے مطابق 90 دن میں انتخابات ضروری ہیں. گورنر عدالتی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. درخواست میں استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ گورنر کو انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دے. 90 دن کی مدت کی قریب ترین تاریخ دینے کی ہدایت کی جائے. الیکشن کمیشن کو تاریخ ملتے ہی فوری انتخابی شیڈیول جاری کرنے کی ہدایت کی جائے. درخواست میں مزید کہا گیا کہ تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کو انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کا حکم دیا جائے. اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بار بار چھاپوں میں ناکامی کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کو بڑی کامیابی مل گئی. علی امین گنڈا پور کو ہائی کورٹ ڈیرہ بینچ کے احاطے سے گرفتار کر لیا گیا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن سلیم. محسن سلیم، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور آج ضمانت کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان کی سیشن جج عدالت میں پیش ہوئے تھے، جبکہ پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے عدالت کے باہر پہنچ گیا اور گھیرے میں لے لیا. گرفتاری سے بچنے کے لیے کئی گھنٹے علی امین گنڈا پور عدالت میں موجود رہے. علی امین گنڈا پور نے افطاری بھی سیشن عدالت کے اندر کی. سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور نے اپنے وکیل بھائی اور پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے مشورہ کرنے کے بعد پولیس کو گرفتاری دے دی ہے. پولیس نے علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے نامعلوم جگہ پہ منتقل کر دیا ہے. گرفتاری سے پہلے علی امین گنڈا پور کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ کیسی آزادی ہے جس میں بولنے کی اجازت نہ ہو. ضمانت لینے کے باوجود پولیس بار بار چھاپے لگا رہی ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے، جبکہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ہمیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہی ہے. مگر ان کی آزادی کے لیے ہم کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. جی بہت شکریہ محسن سلیم اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم شہباز شریف نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے. اجلاس میں سول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی، جبکہ حساس اداروں کے سربراہان اجلاس کو قومی سلامتی پر بریفنگ دیں گے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف سمیت عسکری قیادت شریک ہوگی. اجلاس میں وفاقی وزراء بھی موجود ہوں گے. ذرائع کا بتانا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں موجودہ صورتحال سے متعلق اہم فیصلے کیے جائیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے قومی سلامتی اجلاس طلب کیے جانے پر سوال اٹھا دیا. عمران خان نے ٹویٹ میں لکھا، یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک غیر آئینی قانون لے کر آئے، عدلیہ کے خلاف قومی اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کی، اب انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کرنے اور سیکیورٹی کو اس کے ایک جواز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. ان کا یہ اقدام مسلح افواج کو عدلیہ ہی نہیں بلکہ براہ راست قوم کے سامنے لا کھڑا کرے گا. واضح ہو چکا کہ پی ڈی ایم ہر حال میں انتخابات سے فرار چاہتی ہے. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے توڑ پھوڑ اور تشدد کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے عمران خان اور دیگر رہنماؤں کو تیسری مرتبہ کل طلب کر لیا. دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف کی 8 کیسز میں عبوری ضمانت میں 18 اپریل تک توسیع ہو گئی.
कप्तान की कहीं जमानतों में तोसी तो कहीं तलबी, तोड़ फोड़ और तशद्दुद के मुकदमात की तहकीकात का मामला। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को तीसरी मर्तबा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक JIT ने इमरान खान को खुद पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने का कहा है। इमरान खान समेत PTI के दीगर रहनुमा गुज़श्ता रोज JIT के सामने पेश नहीं हुए थे। अदम पेशी पर JIT अदालत से रहनुमाओं की जमानतें खारिज करने की इस्तदा करेगी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात लाहौर के थाना रेस कोर्स, सिविल लाइंस और शादमान में दर्ज हैं। दूसरी जानिब इमरान खान की 8 केसेस में अबूरी जमानत की दरखास्तों पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान आइंदा समाअत पर न आए तो कानूनी कार्रवाई होगी। फैसल चौधरी ने कहा, सिक्योरिटी का मसला है इसलिए इमरान खान नहीं आ रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी वाली दरखास्त मैंने देख ली है, ऑर्डर जारी करेंगे। अगर फिर भी सिक्योरिटी के मामले पर अमल न हुआ तो आप तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर सकते हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा हमला केस भी दीगर जमानत की दरखास्तों के साथ सुनेंगे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान ने कहा है कि सूबे में अमन व अमान निगरान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह और सबसे अहम जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत इस मकसद के लिए तरजीही बुनियादों पर वसाइल फराहम करेगी। पिशावर में अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए निगरान वज़ीर आला ने कहा कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि सूबे में सिक्योरिटी के मौजूदा सूरत हाल में गैर मामूली इक़दामात और मरबूत लाहे अमल की ज़रूरत है। इजलास में सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने का भी फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसाक़ डार ने डोनाल्ड ब्लूम को दरपेश चैलेंजेस से आगाह करने के साथ साथ IMF से मुज़ाकरात की राह में हायल रुकावटों का भी तज़किरा किया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन का आज़म ज़ाहिर किया। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 31 मार्च को ख़त्म होने वाले हफ्ते में 5.61 करोड़ डॉलर्स कम हो गए। स्टेट बैंक से जारी इदादोशुमार के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 31 मार्च तक 9 अरब 75 करोड़ डॉलर रहे। स्टेट बैंक के ज़खायर 3.6 करोड़ डॉलर्स कम होकर 4.2 अरब डॉलर रहे। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 1.97 करोड़ डॉलर कम होकर 5.5 अरब डॉलर रहे। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 43 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये 42 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई। ओपन मार्केट में डॉलर 294 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 633 के इजाफे से 40,350 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रमज़ानुल मुबारक में शहर कायद में चीनी नायाब हो गई। किसी दुकान पर मौजूद तो कहीं पर दस्तयाब ही नहीं। चीनी की कीमत में भी होशुबा इजाफे से शहरी परेशान हैं। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट देखिए। कराची वालों के लिए हर आने वाला दिन किसी इम्तिहान से कम नहीं। रमज़ान के बाबरकत महीने में भी चीनी की कीमतों को पड़ लग गए। महंगाई की असल वजह शहरियों ने हुकूमत को करार दे दिया। कहते हैं 8 दिन पहले चीनी 90 से 100 रुपए की थी और आज 130 से 140 कर दी गई है। चीनी पाइप तकरीबन 130-35 रुपए मिल रही है। अब जो 90 रुपए 95 रुपए मिलती थी अब 130 रुपए 35 रुपए मिल रही है। जानबूझ करके मतलब ये कि महंगाई जो है ना उरूज पर डालना। चीनी की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, ना चीनी की कमी है ना गंदम की कमी। वह मुनाफाखोरों ने अपनी मर्जी से रखी हुई। दूसरी जानिब दुकानदार भी हुकूमत को दुहाई देते रहे। कहते हैं कि हमारे मुल्क में चीनी की कमी नहीं, सियासतदानों की वजह से मुल्क में महंगाई हो रही है। होलसेल वाले रेट कुछ बता रहे होते हैं और यहाँ दुकानों पे कुछ और रेट होते हैं। हम भी क्या करें, हम भी मजबूर हैं। इस पे काम कर रही है माफिया। लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मालों को डम किया जा रहा है, फिर उसको अपने रेटों से बेचा जा रहा है। शहर कायद में इस वक्त 50 किलो का चीनी का थैला होलसेल मार्केट में 6000 से ज़ायद में फरोख्त हो रहा है, जबकि दुकान पर पहुंच के इसकी कीमत में मजीद इजाफा होता है, जिसके बाइस अवाम मुश्किलात से दो चार होती है। माह मुक़द्दस में अवाम पर महंगाई के वार जारी हैं। अशाए खुरनोश की कीमतों में यौमिया बुनियादों पर इजाफा हो रहा है। चीनी की कीमत भी ऊंची उड़ान पकड़ चुकी है। एक हफ्ते में 125 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। शिराज खान की रिपोर्ट देखिए।
माह सयाम में भी बरसर इक़्तिदार तबके को आवाम पर तरस न आया। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में यौमिया बुनियादों पर इजाफे का न थमने वाला सिलसिला जारी। चीनी की कीमत को भी पर लग गए। एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 15 से 20 रुपए फी किलो तक का इजाफा कर दिया गया। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। कोई एक चीज़ तो हो तो फिर तो बात करें, हर चीज़ जो है वो इसी तरह बढ़ती चली जा रही है। एक मरतबा लेने जाए या दूसरी मरतबा लेने जाए, दूसरी मरतबा फिर नया रेट होगा, तीसरी मरतबा फिर नया रेट होगा। तो यहाँ पे किस किस चीज़ को रोना है? जैसे आपको पता है कि आटा पहले नायाब हो गया था, अब चीनी का वही हिसाब हो गया। चीनी भी अभी महंगी हो गई है, कोई खरीद से बाहर हो गई है। अभी बाज़ार में आओ तो यहाँ पे सस्ता बाज़ार कह के यहाँ पे भी रेट वही, कहने को तो सस्ता बाज़ार है, रमज़ान बाज़ार है। दुनिया में रेट अलग होते हैं, रमज़ान में पैकेज नीचे आते हैं, यहाँ पे रेट रमज़ान पैकेज में माशाल्लाह सब कमाने के चक्कर में होते हैं। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के साथ कोई ना कोई चीज़ इजाफी खरीदनी पड़ती है, इसलिए आम मार्केट में आते हैं, मगर इधर भी कीमतें ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ दुकानदार भी कीमतों पर ग्राहकों से तकरार से तंग हैं। चीनी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। यकीन करें हम दुकानदार हजरात इतने परेशान हैं कि कस्टमर हजरात आके बातें सुनाते हैं, जी आपने इतनी महंगी कर दी है। हकाम बाला से हमारी गुजारिश है कि ये जो गरीब आवाम है इस पर महंगाई का इतना बोझ न डाला जाए। शहरी कहते हैं माह रमज़ान में चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, यही वजह है कि कीमत में भी इजाफा हुआ है। कीमत में इजाफे का नाजायज़ मुनाफाखोर भी फ़ायदा उठा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इस माह मुकद्दस में दुनिया भर में ख़ास तौर पर रिलीफ मिलता है, हमें रिलीफ ना दें, सिर्फ कीमतों में एतदाल बरकरार रखें। कैमरामैन अरशद सती के साथ शिराज खान, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। महंगाई ने सबका ही जीना महाल कर दिया है। मेहनतकश तबके को अब मेहनत की भी पूरी वसूली नहीं होती। कुछ ऐसा ही अहवाल लाहौर रेलवे स्टेशन पर कुलियों का है। तफसीलात नबील नकवी की रिपोर्ट में। रोज़ाना मुसाफिरों का मनोवजन उठाने वाले कुली न रेलवे हुकाम की जानिब से मौसर सपोर्ट और न ही मुसाफिर इनकी मेहनत की मुनासिब उजरत देते हैं। कई गुना महंगाई बढ़ने के बावजूद कुलियों को फी फेरा 70 रुपए ही दिए जा रहे हैं। असी तो सिर ते समान चुकना तो 150 सानू फेरा मिलना ते फिर साडा गुजारा होना, मगर जेडे इस टाइम हालात आ पहले माह रमज़ान तो लाके ते 5वीं माह रमज़ान तक साडा काम बिल्कुल नहीं हुंदा। ऐसा जा रहा है कि बिल्कुल कोई पैसा नहीं है, कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं है। पाकिस्तान के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लाहौर जंक्शन पर दिन रात काम करने वाले कुलियों की सूरत हाल तकरीबन फाकों तक आन पहुंची है। रमजानुल मुबारक में अफ्तारी और सहरी करना मुश्किल हो गया है। दौड़ा भजना दौड़ के मजूरी करी दी है, कोई सामान के पैसे दे देता है ठीक चलता रहता है, नहीं कोई गल भी नहीं। बहुत महंगाई है। हमारी जो रोजगारी है, हमारे को तो कुछ पैसा भी नहीं मिल रहा है। हम 200-300 रुपए कमाते हैं, वो हमारा खर्चा पूरा नहीं होता, यहाँ तक हम तंग हैं। बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र रेलवे इंतजामिया को कुलियों के लिए मौसर इकदामात उठाने चाहिए ताकि ये मेहनतकश तबका भी 2 वक्त की रोटी बआसानी खा सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आपने देखी, खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा के माबैन बीजिंग में तारीखी मुलाकात हुई, जिसमें सिफारती ताल्लुकात की बहाली समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान और सऊदी खबर एजेंसियों की जानिब से दी गई खबरों के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान के माबैन चीन की मेज़बानी में होने वाली ये मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। मुलाकात में दोनों ममालिक में चीन में मुतय्यन सफ़ीर और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली, सिफारत खाने और कौंसल खाने खोलने जैसे अमूर के अलावा 2 तरफ़ा दिलचस्पी के दीगर मौज़ूआत पर भी बातचीत की। मीडिया पर जारी वीडियो क्लिप्स में दोनों वज़राए ख़ारजा को कैमरों के सामने हाथ मिलाते हुए देखा गया। कराची का पोश जिला साउथ गैर कानूनी तामीरात के चुंगल में डायरेक्टर और ठेकेदार ने इंसानी जानें दांव पर लगा दी। सदर टाउन में जवेरिया माल नामी कसीरुल मंजिला इमारत पर इजाफी गैर कानूनी तामीरात शुरू कर दी गई, जबकि तहकीकाती इदारे सिर्फ खतो किताबत तक ही महदूद हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बुरहान मुस्तफ़ा। जी बुरहान मुस्तफ़ा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद का सबसे पोश जिला साउथ गैर कानूनी तामीरात में बाजी ले गया। डायरेक्टर आसिफ रिजवी और ठेकेदार राशिद नारेजो इंसानी जाने दाव पर लगा दी है। रिहायशी के साथ साथ कमर्शियल इमारतों पर भी गैर कानूनी तामीरात जारी है। सिस्टम के नाम पर मुबैना तौर पर राशिद नारेजो नामी शख्स महाना
करोड़ों रुपए जो है वो उठा रहा है। सदर टाउन में जवेरिया मॉल नामी कसीर मंजिला इमारत पर इजाफी गैर कानूनी तामीरात जारी है। ओल्ड सिटी एरिया और जिला साउथ के दीगर इलाकों को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया गया है। जिला जनूबी की गैर कानूनी तामीरात पर तहकीकाती इदारे सिर्फ खते किताबत में ही मसरूफ हैं। जिला साउथ के शहरी मुतालबा करते हुकूमत से कि इन शहर पसंद अनासिर के खिलाफ जो है वो तहकीकात की जाए। बहुत शुक्रिया बुरहान मुस्तफ़ा अपडेट करने के लिए। आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत का कुरानदाजी के बगैर दरख्वास्त देने वाले तमाम आज़मीन को और हज पर भेजने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं रवां साल तमाम 72,869 आज़मीन को हज के लिए भेजा जाएगा। वज़ीर मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना है कि पाकिस्तान समेत इस वक्त पूरी दुनिया में बहरान है, उम्मीद है हमारा मुल्क तरक्की और खुशहाली करेगा। किसी कुरानदाजी ना की जाए और 72,869 जितने दरख्वास्त गुजार हैं उनको अल्लाह ताला के घर इस साल हज का मौका दिया जाए। पाकिस्तान में वो माशी क्राइसिस पूरी दुनिया में है, तो पाकिस्तान में इस हवाले से मसाइल थे। पाकिस्तान का जो यानी इमेज था इंशाल्लाह उसी तरीके से वापस आएगा। अल्लाह पाकिस्तान को मजीद तरक्कियाँ दे, खुशहालियाँ दे और हमारे हुजाज की तमाम जो इश्क रसूल और इश्क अल्लाह से लबरेज है उनकी तमाम इस इश्क को भी कबूल फरमाए। सच टीवी की मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन यौम विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम में उलमाए कराम की सैर हासिल गुफ्तगू, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। मनकबत खान ने खुसूसी कलाम पेश किया। सयाम की बाबरकत साआतें सहरो अफ्तार में सच टीवी की मरहबा रमजान ट्रांसमिशन जारी है। 15वें रोजे की अफ्तार ट्रांसमिशन की खसूसी महफिल ज़हूर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से सजाई गई। तिलावत कलाम पाक की सादत कारी अली हसन ने हासिल की। अहमद नवाज कादरी ने शान इमाम हसन में खूबसूरत मनकबत पेश करके समा बांध दिया। उलमाए कराम मौलाना कामरान कुरैशी और मौलाना लियाकत अली आवान ने नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल लख्ते जिगर अली बरादर शहीद करबला हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़हूर जिंदगी और नाना के दीन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों पर रोशनी डाली। इमाम हसन मुज्तबा चमनिस्तान मुस्तफ़ी की पहली बहार है, जो राकबे दोशी रसूल है, फरजंदे ज़हरा बतूल है, नूरे दीदाए मुर्तज़ा है, बरादरे सय्यदुश्शुहदा है और खुद सय्यदुश्शुहदा के बाई होने के साथ साथ इमाम हसन मुज्तबा हैं। 15वें रोजे की ट्रांसमिशन में क्विज मुकाबला बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी मुल्तान और तकरीरी मुकाबला उसवा कॉलेज के नाम रहा। इल्म हिकमत सब्र हिल्म का पैकर नवासा रसूल हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मरकजी इमाम हुसैन कौंसिल के ज़ेर एहतमाम रावलपिंडी में विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तफसीलात सुहेल राजा की रिपोर्ट में। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। रावलपिंडी में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब में चेयरमैन मरकज़ी इमाम हुसैन कौंसिल मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर गज़नफ़र मेहदी का कहना था, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ख़ानदान नबूवत के अजीम चश्मो चराग़ थे। वो हस्ती जिन्हें नबी आखिरुज़्ज़मान ने अपनी औलाद करार दिया। आपकी तालीमात पर अमल करके दहशत गर्दी और फ़िरकावारियत का खात्मा किया जा सकता है। मुकर्रीन का कहना था कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की दीन इस्लाम के लिए मिसाली खिदमात हैं। अपने फ़ैसलों से उम्मत में इत्तेहाद का पैगाम दिया। हमें उनकी सीरत पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस से अलामा नैयर अब्बास, इखलाक ज़ैदी, खानम रिदा बतूल, नईम कुरैशी, एहसान किब्रिया और दीगर ने खिताब किया। जिसका किरदार वही इलाही से है, अगर ये सामित कुरान तो वो नातिक कुरान, वो जो नातिक कुरान है उसकी शबी को हसन मुस्तबा कहते हैं। सैयदना इमाम हसन मुस्तबा आप अलैहिस्सलाम का जब जिक्र करते हैं तो सखावत
जो है वो खुद ब खुद ही हमारे ज़हन में आ जाती है। आखिर में करारदाद पेश करके हुकूमत से मुतालबा किया गया कि यौम अली पर आम तातील और सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया जाए। कैमरामैन हसन नकवी के साथ सुहेल राजा, सच न्यूज़ रावलपिंडी। सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए sach tv.pk और देखते रहिए सच।